ओके बेटा, क्लियर हो रहा है सबको, समझ आ रहा है? मोलिशा, मोलिशा, वर्णिका, यतिन बत्रा, क्लियर हो रहा है बेटा? पैसिव टू एक्टिव, यस बेटा. We are on 9th sentence. Mannat is saying. Okay, we will come to 9th now. Okay, Gia, you network problem is there? Network problem was there. You did not attend class yesterday. Gia, unmute yourself. Okay, we have to do 9th sentence. Let's do first 8 also. Let's revise 8 also. By whom has this crime been? Anshu, do this 8th sentence. By whom has this crime been committed? Who Yes. has committed this crime? Yes, by whom हम क्या करते थे? एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए who को by whom में चेंज करते थे. अब हम इस by को रिमूव कर देंगे. We will remove this by. इस by को रिमूव करके हम who ही लगाएंगे. और अब जो है, जो हैज हैव के साथ थर्ड बीन लगता था वो भी रिमूव हो जाएगा. ये बीन भी रिमूव हो जाएगा. Who has committed, और जो सब्जेक्ट बनाया था उसको हम वो ऑब्जेक्ट बना देंगे. Who has committed this crime? Who has committed this crime? This is its answer. Now, sentence number 9. Is the background voice coming to you? Is there any background noise disturbing you? Yes, students? No, sir. Okay. No, sir. Let's do 9th sentence. Mannat, can you do 9th sentence? Will you do? Mannat. What is the meaning of commit? Commit means to do. Aftab, commit means to commit any crime. Commit an act. गलती करना. Commit a crime. कोई अपराध करना. Okay. Mannat is not able to hear. Jia Manik, you are unmuted. Read 9th sentence. Have my orders been carried out by them? Yes. Have they carried out my orders? Yes. It is interrogative sentence, and you know that helping verb will remain on its position. And when we make them as subject, you know that with they we will use have. अब जो हम we will skip been, अब हम been को skip कर देंगे. जैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम been ऐड करते हैं. अब उसको skip करना है बस. बाकी सेम है. Have they carried out my orders? By skip हो जाएगा बेटा. ये by भी छोड़ देंगे हम इसको. पहले यूज करते थे. Now the action is being done by they. Have they carried out my orders? क्या उन्होंने मेरे orders का पालन किया? Now they is important. और in passive have my orders been carried out by them? Orders के ऊपर action किया जा रहा था. क्या उनके द्वारा मेरे orders की पालना की गई? उन्होंने पूरा किया मेरे orders को. ठीक. So we have to do opposite of the active से पैसिव बनाने के लिए जरूरत है उनका अपोजिट करना है हमें. सेंटेंस नंबर 10. सेंटेंस नंबर 10. अंशु, डू. The magic mirror was picked up by the queen. The queen picked up the magic mirror. Okay, the magic mirror. Why you have used here picked? Yes. Why picked? सेकंड फॉर्म क्यों यूज की गई बेटा यहाँ पे? अंशु, can you tell? Sir, because sentence में was था. हाँ जी, क्योंकि सेंटेंस में वाज वर था, और जब भी वाज वर आ जाए तो हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है, जैसे सेकंड फॉर्म को रिमूव करके हम वाज वर लगाते थे, अब हम वाज वर को रिमूव करके सेकंड फॉर्म लगाएंगे. युक्ति, डू सेंटेंस नंबर 11. सेंटेंस नंबर 11. युक्ति, कैन यू हियर मी? यस बेटा, रीड सेंटेंस नंबर 11 and tell its answer also. Yukti is not able to hear my voice. Yes, start beta. 11th sentence.
Are you writing in the chat box or going to speak? Yes, beta, speak. Melissa, you are also muted. Melissa, unmute yourself. Melissa, Yukti is not speaking. You tell the answer of 11th sentence. Listened to by the director. The story was listened to by the yes. Story. Yes. The director listened to the story eagerly. Same rule, like just like 10th, there was verb plus third form. Here also was plus third form. So we will use here second form, this form, and we will remove the by here. 12th number, sentence number 12. Mahi, do sentence number 12. The wounded soldiers were carried away by the local people. The local people carried away the wounded soldiers. Wounded soldiers. Pronunciation is wounded. Wounded means injured, घायल. The wounded soldiers were by the local people. मैं बेटा आपको म्यूट करता हूँ सबको, पीछे से वॉइस आ रही है. Okay beta, background noise was there, that's why I have muted all of you. माही ने बोला है कि आंसर होगा the local police carried away the wounded soldiers. पैसे वाइज था, the wounded soldiers were carried away by the local police people. local people जो है wounded soldiers को ले गए. तो इसका जो एक्टिव वाइज बनाएंगे तो the local people है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा. local people अब ऑब्जेक्ट था. जब हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं, बाय के बाद वाला जो ये सब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे. ओके, वी विल मेक इट सब्जेक्ट. देन वी विल चेंज दिस वर्ब. वर्ब में वाज प्लस थर्ड फॉर्म है, तो हम इसको जो है कैरिड बना देंगे. क्या आंसर होगा इसका? कैरिड. द लोकल पीपल कैरिड अवे. अवे साथ ही लगा रहेगा, दिस इज प्रेपोजिशन, ये साथ ही लगा रहेगा. और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, द वुंडेड सोल्जर्स को ऑब्जेक्ट बना देंगे. आई थिंक ये एक्सरसाइज क्लियर हो गया आप सबको. मुकुल बजाज, अनम्यूट योरसेल्फ. if this exercise is clear to you, write yes in the chat box. All of you write yes in chat box if this exercise is clear, and I will send its answer also. Now let's do next page. Here it is, use the information of the headlines. Prachi, unmute yourself. Prachi, yes beta, read this sentence. This question is there, E exercise. Read this sentence. Yes, Prachi. Yes, Prachi's voice is not coming to me. Varnika, will you read? Varnika, unmute yourself. Yes, sir. Read this exercise. Ravi, aged 8 years of defense colony, dash while he was returning from his coaching class. Okay, तो ये हेडलाइंस थी. हमें ये हेडलाइंस को यूज करके एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना कि पैसे वाइज में क्या लगेगा. देखो, 8 year old boy kidnap. क्वेश्चन था कि 8 year old boy kidnap. तो ये बता रहा है कि पास्ट टेंस है. किडनैप से क्या पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है. यतिन पत्रा, अनम्यूट योरसेल्फ. यतिन, अनम्यूट करके अपने आप को. यस यतिन, यस बेटा यतिन, अनम्यूट किया आपने. हाँ जी सर. बेटा ये किडनैप कौन सी फॉर्म है? यतिन, हाँ जी सर. ये जो किडनैप लिखा हुआ यहाँ पे,
ये विच ये क्लियर ये सेकंड फॉर्म है बेटा, क्या क्लियर नहीं है? वॉइस वॉइस इज नॉट क्लियर। आपकी बैकग्राउंड वॉइस भी आ रही है, अपने आप को म्यूट कर ले बेटा, किसी और। ओके, वर्णिका हैज रेड द क्वेश्चन। रवि 8 years old of defense colony was kidnapped. The answer is was kidnapped because in active voice there was kidnapped second form. It was past tense. That's why we have used was kidnapped. Now sentence number second. अब किसी ने किडनैप किया ना उसको, तो इसलिए पैसिव वॉइस बनेगा। बट इस सेकंड सेंटेंस में देखना, सेकंड में कैसे होगा। मोलिसा, unmute yourself and read sentence number 12 with heading. Sentence. Yes, A Molisa. passenger train dashed about 10 meters from Mathura station, causing the death of 4 persons. Yes. Option भी पढ़ दे बेटा। These options also. Okay बेटा, let me read. Heading a passenger train derailed, 4 died. Means एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। Derailed means पटरी से नीचे उतरना। 4 died, 4 persons died. A passenger train derailed. अब हम यहाँ पे derailed यूज करेंगे क्योंकि वो अपने आप derail हुई है, किसी ने नहीं किया उसको, पटरी से अपने आप उतरी है। A passenger train derailed about 10 meters from Mathura station, causing the death of 4 persons. अब हमने यहाँ पे was derailed क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि पैसेंजर ट्रेन अपने आप एक्शन नहीं कर सकती, ये अपना एक्शन ट्रेन किसी ने किया नहीं है। ओके, पैसेंजर ट्रेन डिरेल्ड। ओके, क्लियर है बेटा आंसर मुकुल? Yes, sir. ओके, लेट्स डू नेक्स्ट सेंटेंस। दिल्ली गर्ल ऑनर्ड फॉर ब्रेवरी। दिल्ली की कोई गर्ल थी, उसको ब्रेवरी के लिए ऑनर्ड किया गया। मन्नत, will you unmute yourself? Delhi girl honored for bravery. Okay. A 12-year-old girl, Ankita Reddy, dashed by the Chief Minister of Hyderabad for bravery and saving 2 lives. Options are: is honored, was honored, had been honored, had been honored. Okay. The answer is was honored. Why was honored used? मन्नत, was honored क्यों यूज किया गया? is honored क्यों नहीं किया? yes बेटा। ओके, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। आई विल टेल द आंसर। सेकंड फॉर्म सर क्योंकि वहाँ honored में ed है ना। honored में ed है, ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट का इंसिडेंट है और ये एक्शन किसी ने किया है। और जब बाय द चीफ मिनिस्टर आ गया तो हमें पता चल गया कि पैसिव वॉइस है और पास्ट में हुआ तो हम वाज वर्ड यूज करेंगे। क्वेरीज आई है सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। प्रिया को वॉइस आंसर ऑफ 1 माय वर्क वाज गॉन, माय नेटवर्क वाज गॉन। युक्ति कह रही है फर्स्ट का आंसर। ओके, बिकॉज इट्स पास्ट। यस तमन्ना, यू आर राइट। फर्स्ट का आंसर मैं बताता हूँ, नेटवर्क चला गया था। इसमें बेटा किडनैप किया गया था। रवि एज वाज किडनैप, तो ये एक्शन किसी ने किया, पैसिव सेंस होगी। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म में वाज किडनैप, तो हम यहाँ पे वाज वर्ब प्लस रखेंगे। Let's do next sentence now. Sentence number 4. Rare animal sighted. Okay. Can you hear me? Unmute yourself. अगर आपका नेटवर्क ठीक हो गया अब। Yes, बेटा, read. Resident of Ganga village in the northwest Bengal claimed dash in the neighboring forest. Yes. And the options are Options. that a rare animal was sighted, a rare animal has been sighted, about a rare animal sighted, that a rare animal had been sighted.
सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर, ये एक दो बच्चों की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है बेटा। इसका आंसर आएगा बेटा, रेजिडेंट्स ऑफ गोक्सा डांगा विलेज इन नॉर्थ वेस्ट बंगाल क्लेम दैट ए रेयर एनिमल वाज साइटेड। यहाँ पे वाज साइटेड आएगा इन द नेबरिंग फॉरेस्ट, क्योंकि पास्ट की बात है। रेयर एनिमल साइटेड, किसी ने दुर्लभ किस्म का एनिमल देखा, तो फिर इसका आंसर बन जाएगा रेजिडेंट ऑफ गोक्सा डांगा विलेज इन नॉर्थ वेस्ट बंगाल claim that a rare animal was sighted. Now let's do editing. This passage has not been edited. There is an error in each of the line. Underline the incorrect word, and write the correct word. So ये लिखे हुए हैं यहाँ पे. Who will do this? Ansu, do this beta. Read full paragraph. Full hand raise किया बेटा. First, the paneer was staked and chopped. It was washed and dried. Salt, chili powder, and curd was added. The paneer was marinated for 1 hour. The pieces were fried in oil. Then it was cooked with milk, chilies, and sauces. Yes, beta, you have read it right. Let me explain its answer. First, the paneer was taken and chopped. अब was take, आपको पता है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आंसर क्या होगा? was taken. बट यहाँ पे was taken क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो है हम किसी चीज की रेसिपी बता रहे हैं और प्रेजेंट टेंस में. ओके, किसी डिश की रेसिपी बताते हैं तो प्रेजेंट टेंस में बताई जाती है, प्रेजेंट टेंस में एक्शन एक्सप्लेन किया जाता है उसको. तो यहाँ पे वाज टेक नहीं आएगा, इज टेकन आएगा बेटा. ओके, और इसके बाद जो है फर्स्ट द पनीर इज टेकन एंड चॉप्ड, इट इज वॉश्ड एंड ड्राइड, साल्ट, चिल्ली पाउडर एंड कर्ड इज एडिड. यहाँ पे आर एडिड, ये प्लूरल हो गया, साल्ट, चिल्ली एंड कर्ड, ये आर एडिड हो जाएगा यहाँ पे. द पनीर इज मैरिनेटेड फॉर 1 hour. मैरिनेटेड मीन्स मिक्सड विद द सॉस फॉर 1 hour. ये जो ऊपर साल्ट, चिल्ली पाउडर, कर्ड की बनाई थी, इसके अंदर 1 hour के लिए मैरिनेट किया जाएगा, रखा जाएगा. सर 1 and 3 आंसर. सर अनम्यूट यूर सेल्फ. हो गया बेटा, मैं अनम्यूट हूँ. द पीसेज वर फ्राई इन ऑयल. The pieces are fried in oil, then it is cooked with milk, chili and sauce. ये तो लगता है शाही पनीर बनाने की रेसिपी है, गर्ल्स को पता होगा, मोस्टली गर्ल्स को, कि कैसे बनाया जाता है शाही पनीर. और इसको रेसिपी के लिए बताने के लिए देखो पैसिव वॉइस का यूज किया गया है. फर्स्ट द पनीर इज टेकन, पहले पनीर लिया जाता है, एंड चॉप, उसको छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, एंड इट इज वॉश्ड एंड ड्राइड, तब उन टुकड़ों को वॉश करके ड्राई किया जाता है. सॉल्ट, चिली पाउडर एंड कर्ड इज एडिड, तब जो है सॉल्ट, चिली और कर्ड पाउडर को ऐड किया जाता है. द पनीर इज मैरिनेटेड फॉर 1 hour, तब पनीर को 1 घंटे के लिए सॉल्ट के साथ, इनके साथ सॉस के साथ मिला के रख दिया जाता है. द पीसेज आर फ्राइड इन ऑयल, तब उन पीसेज को जो है ऑयल के अंदर फ्राइड किया जाता है. देन इट इज कुक्ड विद मिल्क, चिलीज एंड सॉसेज, तब इसको जो है मिल्क के साथ, चिलीज के साथ और सॉस के साथ कुक किया जाता है. तो ये जब भी रेसिपी होती है वो प्रेजेंट टेंस में होती है. आप यूट्यूब पे भी कोई रेसिपी देखते हो तो प्रेजेंट टेंस में होती है. आप हिंदी में देखते हो, अगर आप उसको इंग्लिश में देखें तो इसी टाइप से यूज करेंगे. अब जो है कपड़े धोने का प्रोसेस बताया गया बेटा. ए फ्यू वर्ड्स आर मिसिंग इन दिस पैसेज, राइट द मिसिंग वर्ड्स. वर्णिका को अनम्यूट कर रहा हूं मैं. वर्णिका, रीड दिस पैसेज. First, the white clothes are separated. The clothes are then put in a bucket with detergent. The dirty part is brushed
vigorously, and then they are rinsed in clean water. They are and put to dry. Squeeze. दे आर स्क्वीज्ड एंड पुट टू ड्राई। पहले स्क्वीज करते हैं ना, तब ड्राई करते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर सॉस कौन डालेगा पनीर में? बेटा आपको पता नहीं है ना कैसे बनाते हैं सॉस। यहाँ पे मतलब वो जो तड़का लगाते हैं ना, जिसमें टमाटर वगैरह और चीजें डाल के, और कई टाइप की सॉस होती है। जरूरी नहीं है कि वो आप जो टमाटो सॉस खाते हैं वही सॉस होती है। बहुत सारी टाइप की सॉस होती है, वो डाली जाती है। एक बच्चे की क्वेरी थी चैट बॉक्स में, तो मैं उसको दूर कर रहा था। अगर वो अपनी मदर से रेसिपी पूछेगा तो आपको पता लग जाएगा बेटा। ये कपड़े धोने का प्रोसेस है बेटा। आप अपनी मदर से भी पूछ सकते हैं। वो पहले कहेंगे फर्स्ट द वाइट क्लोथ्स आर सेपरेटेड। सबसे पहले व्हाइट क्लोथ्स को सेपरेट कर लेते हैं ताकि उनमें दाग ना लगे। द क्लोथ्स आर देन पुट इन ए बकेट। क्लोथ्स को बकेट में डाल देते हैं विद डिटर्जेंट के साथ। द डर्टी पार्ट इज डस्ट विग्रेसली। डर्टी पार्ट्स होते हैं ना, कॉलर वगैरह, उनको बड़े जोर से रगड़ा जाता है। एंड दे आर रिंस्ड। तब उन्हें निचोड़ा रिंस किया जाता है, पानी के अंदर डुबोया जाता है इन क्लीन वाटर। दे आर स्क्वीज्ड एंड पुट टू ड्राई। उनको स्क्वीज करके, निचोड़ के, जैसे आप लेमन स्क्वीज करते हैं इसी टाइप से क्लोथ्स को भी स्क्वीज किया जाता है और उनको जो है सूखने के लिए डाल दिया जाता है। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी शायद। यूज द इंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीट द पैसेज इन द पैसिव वॉइस। इसको हमने पैसिव वॉइस में यूज करना है। अगर पैसिव वॉइस में यूज करना है तो ये भी एक प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन का। द नीड्स आर असेस्ड। पहले जो है देखते हैं कि कहाँ पे रोड बनाना जरूरी है। द सॉइल सैंपल्स आर टेकन। सॉइल के सैंपल लिए जाते हैं। एंड रूट इज क्लियर। रूट को क्लियर किया जाता है। रूट इज लेवल्ड। उस रूट को फिर लेवल करते हैं रोड रोलर से। देन थिक लेयर ऑफ कंक्रीट आर पुट डाउन। मोटी मोटी बजरी वगैरह डाली जाती है। द टॉप सरफेस इज लेड। ऊपर वाला टॉप सरफेस जो होता है तारकोल वाला, वो डालते हैं। एंड द ट्रैफिक गाइड्स आर एडेड। ट्रैफिक के गाइड्स ऐड किए जाते हैं कि यहाँ से चलना अलाउड है या नहीं चलना अलाउड। सर कैन आई टेल द टेक्स्ट नेक्स्ट? सर कैन आई रीड? तमन्ना संधू, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, अदरवाइज आई विल। आपका वीडियो ऑन नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं देख पा रहा। ओके, प्लेन राइस कैसे बनाते हैं? आज तो बहुत सारे प्रोसेस सीखोगे बेटा। शाही पनीर, प्लेन राइस, कपड़े धोने का प्रोसेस, सड़क बनाने की प्रक्रिया, प्लेन राइस। बेटा शायद ये लास्ट है। पोर वाटर इनटू ए कुकर एंड बॉयल। बनाया आपने किसी ने? हैंड रेज करना जो वीडियो ऑन है जिनका। किसी ने राइस बनाया है गर्ल्स में से? प्लेन राइस? हाँ जी बेटा। ओके, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है। ओके गुड। प्लेन राइस बनाने तो आने चाहिए, इजी है। जैसे मैगी बनाते हो ऐसे ही राइस बनाना भी इजी है। पोर वाटर इनटू कुकर एंड बॉयल, ये कुछ लिखा हुआ था, रेसिपी दी गई थी, हमें इसको जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द वाटर इज पोर्ड इनटू द कुकर एंड बॉइल्ड। सबसे पहले कुकर के अंदर वाटर डाला जाता है और बॉयल किया जाता है। द राइस एंड साल्ट आर एडेड। तब जो है चावल और साल्ट ऐड करते हैं। एंड इट इज स्टीर्ड, और उसको हिलाया जाता है। इट इज ब्रॉट टू फुल प्रेशर। फुल प्रेशर पे लाया जाता है फॉर 2 मिनट्स। द हीट इज रिड्यूस्ड। तब हीट को रिड्यूस कर देते हैं। एंड इट इज फर्दर कुक फॉर 2 मिनट्स। तब दोबारा फिर 2 मिनट के लिए कुक करते हैं। द राइस इज अलाउड टू कुक नेचुरली आफ्टर रिमूविंग हीट। हीट रिमूव करने के बाद तब उन्हें जो है नेचुरली गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है, कुक होने के लिए। ये प्रोसेस था बेटा। आपने देखा कि हर जगह इसमें इजेएमआर यूज किया गया है। इजेएमआर मीन इट शोज प्रेजेंट टेंस एंड विथ थर्ड फॉर्म। So it is used in present tense. Water is poured into the cooker. Rice and salt are added. अब यहाँ पे rice and salt plural आ गया तो are यूज किया है। It is stirred, को हिलाया जाता है। It is brought to full pressure, ठीक है, for 2 minutes. To full pressure, यहाँ पे जो बेटा it's brought तो पहले ही लगा हुआ था, तो हमें to infinitive लगाना पड़ेगा। The heat is reduced and it is further cooked for, दोबारा पकाया जाता है। The rice is allowed to cook naturally after removing heat. हीट रिमूव करने के बाद उसको जो है दोबारा उसको करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सो ये एक्सरसाइज थी आपकी एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने की। आई होप कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। एंड
now I am going to unmute all of you for 3-4 minutes are left, and all of you can unmute yourself. I am going to allow you to unmute and you can tell your queries. Sir, please show construction of road again. Construction of road again. बेटा उसमें आपको EJMR plus third form लगानी थी. कोई क्वेरी और भी थी? सर आपने गर्ल्स को रीड करना दिया, बॉयज को नहीं. बेटा आप स्क्रीन पे नहीं आ रहे थे. मुकुल बजाज ने रीड किया था. ओके बेटा, ऐसा कुछ नहीं है. जो मुझे स्क्रीन दिखाई दे रही थी, जिनका वीडियो ऑन था, उनको मैंने पढ़ने दिया. ऐसा नहीं, मैं टर्न वाइज करता हूँ. जो मुझे स्क्रीन पे वीडियो दिखाई देते हैं, जिनका सिग्नल अच्छा होता है, उन्हीं का वीडियो दिखाई देता है और उन्हीं को मैं बोलते. मैंने यतीन को भी चांस दिया था, बट ही वाज नॉट एबल टू स्पीक. उसकी वॉइस ही नहीं आ रही थी. तमन्ना संधू कह रही है, सर कैन यू सेंड ऑल द एक्सरसाइज इन द ग्रुप? यस, आई विल सेंड ऑल द एक्सरसाइज. सर एक का फर्स्ट और सेकंड को आई विल सेंड ऑल एक्सरसाइजेज. मैं आप सबको यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. अब आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो वन बाय वन. अगर कोई क्वेरीज है तो पूछें, अदरवाइज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ. बेटा इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. यस बेटा. हर्षिता बजाज. यस बेटा. And your voice is also not. I am not able to hear your voice. Write in chat box. Any another student? Any another student who want to ask? I can see only 5-6 students here. Varnika, Mukul, Bajaj, Mannat, Prachi, Yukti. Jia Manik has also come. Okay, who is this? यस मितन. बेटा कोई क्वेरी है? यस मुकुल, अब आपने वीडियो स्टार्ट किया है, कोई क्वेरी है बेटा? बॉयज ने? नो सर. जतिन कह रहा नो क्वेरी. ओके, एनीबॉडी एल्स? कोई क्वेरी हो तो बेटा एक्टिव पैसिव की बताएं मुझे. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर ये सर हैज बीन किस सिचुएशन में यूज होता है? बेटा हैज बीन तब लगाते हैं जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो. हैज प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, या हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, या फिर वुड हैव थर्ड फॉर्म. मींस परफेक्ट टेंस जब भी होता है तब हम करते हैं. जस्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म. ओके, हैड प्लस थर्ड फॉर्म. तो जब भी थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम. बेटा 1 minute is left. ओके. If you have any query you can send me to my personal WhatsApp number. Jia Manik, is that concept? Sir, you are, what are the situation लगता है yeah. Tell your query if you have any. Jia Manik. अब आप सर ये पता कहाँ से लगा है कि ये ऑर्डर आया एडवाइस है? वाक्य की सेंस से पता चलेगा बेटा. अगर ऑर्डर दे रखा होगा तो उसमें अगर नहीं पता चल रहा तो आप उसको लेट से बना लो. ठीक है, लेट वाला तरीका. सर एक एग्जांपल देना. देखो बेटा, मान लो अगर प्लीज और काइंडली आए तो रिक्वेस्ट होती है. ओके, अगर एडवाइज हो तो जैसे टेक मिल्क डेली. ओके, यू आर एडवाइज टू टेक मिल्क. अगर मैं कहूँ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर. अगर नहीं पता चल रहा ऑर्डर का तो लेट से बना ले उन सेंटेंसेस को. ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है. काइंडली और प्लीज वाले में रिक्वेस्ट मिलेगी, ये तो कंफर्म है.